ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। Lead me kindly light amid the encircling gloom. गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धट धरा धर धर कृधान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दी नागे ता किड़तक धरान तरान धा किड़तक धरान तरान धा किड़तक धरान तरान धा। Before I start tabla riyaj on date late evening, although it is night time, I offer my floral tributes to the lotus feet of my spiritual Guru Maharaj Ji. Today is very auspicious day, Guru Purnima 2026. And then I dedicate my tabla riyaj to the feet of all the gharanas past, tabla maestros, tabla vijad. Now I would love to brief narrate whatever you say, commentary, little bit commentary in Bengali and Hindi too. आज বঙ্গাব্দ 13ই শ্রাবণ 1433। আজকের এই গুরু পূর্ণিমার পবিত্রতম দিনটিকে স্মরণ করি আমরা। আজ এই পবিত্রতম দিনটিতে প্রতিদিনের ন্যায় আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু মহারাজজির শ্রীচরণ কমল পাদ পদ্মে শতকোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম সহ অন্তরের অফুরন্ত ভালোবাসা, গভীর শ্রদ্ধা এবং আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তি প্রতিটি ঘরানার বিদ্বান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতাচার্য, প্রত্যেকটি সঙ্গীত গায়ক গায়িকা, যন্ত্রসঙ্গীতের সমস্ত বিখ্যাত ম্যাস্ট্রোস, ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট এবং আমার বাল্য জীবন হতে যাদের সঙ্গ সুখ হয়ে বড় হওয়া তবলার কিংবদন্তি সমস্ত পণ্ডিত ওস্তাদেদের স্মরণ করে তাদের পাদপদ্মে প্রণাম ও
ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে। তবে আজকের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। আজ এই খানিকক্ষণ আগেই সন্ধেবেলায় আমার, তবে এটা আমাদের প্রতিটি সঙ্গীত জগতের যারা শিল্পীরা রয়েছেন, সঙ্গীত রসিক শ্রোতারা রয়েছেন, তাদের জন্য আজকে একটু হলেও দুঃখের বেদনাদায়ক। কারণ আমাদের বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে পণ্ডিত নামটি উনি লাগানো একেবারেই পছন্দ করতেন না। ওনার শতবর্ষ সেই দিনটিকে আমি স্মরণ করি। ওনার পুত্র শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য, উনি অসাধারণ একটি অনুষ্ঠান দক্ষিণ কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে তিনি আয়োজন করেছিলেন। তাতে পণ্ডিত অমিয়রঞ্জন সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আমরা অনুভব করেছি। গত বছরও ওনার গানের অনুষ্ঠানে, প্রতিটি গানের অনুষ্ঠানেই আমি উপস্থিত থাকতাম, সাক্ষী হতাম। তবে আজ জানতে পারি যে আজ প্রায় অপরাহ্ন মানে দুপুর 2:30 থেকে 3টের মাঝামাঝি উনি আজ অমৃত লোকে গমন করেন। শতবর্ষের শতাধিক শতঊর্ধ্ব ওনার বয়স হয়েছিল। তবে এই তার অবদান বিষ্ণুপুর ঘরানার সেই অপরিহার্য। আর কারণ পণ্ডিত সেই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে নিয়ে সমস্ত যারা ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার, এবং তার পিতৃদেব সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদেরও আজ আমি স্মরণ অবশ্যই করব। তবে আমাদের সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার চলে যাওয়া, অমৃতলোকে তিনি গমন করেছেন। এবং সব থেকে আজকে ইম্পর্টেন্ট যে আজ এই গুরু পূর্ণিমার দিনে তার কতখানি তার শরীর সাধক তিনি ছিলেন, এবং সঙ্গীত সাধক, এবং তার পুণ্যাত্মা তিনি ছিলেন, যে আজকের এই পবিত্রতম দিনটিতে উনি আজ শরীর ছাড়েন। আমাদের আজ প্রত্যেককেই এই শরীর ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে আজকে ওনার সেই অমৃত লোকে যাওয়া, এটি বিশেষ করে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। এবং স্থূল শরীরে তার আত্মার শান্তি ঈশ্বরের পাদপদ্মে আমি গৌতম কমল গান্ধার ওরফে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা জানাই, তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তাই আজকে এই একটু তবলা আমার নিজের রেয়াজ করার মাধ্যমে তার আত্মা এবং কিংবদন্তি যে সমস্ত প্রতিটি ঘরানার সঙ্গীতাচার্য বলুন, পণ্ডিত বলুন, ওস্তাদেরা বলুন, যাদের ছোটবেলা থেকে গান শুনেছি, দেখেছি, যন্ত্রসঙ্গীত শুনেছি, সেতার হোক, শরৎ হোক, সানাইয়ের বিসমিল্লাহ খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ, এবং যে কোনো যন্ত্রসঙ্গীত হোক, শরৎ, সারেঙ্গি, সেতার, বেহালা, রাবাব, যাই বলুন না কেন, বীণা, প্রত্যেকটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের স্মরণ করছি। এবং আজ আমি যাদের ছোটবেলা থেকে দেখেছি, তবলার পাখোয়াজের, মৃদঙ্গ পাখোয়াজের যারা মার্তণ্ড ছিলেন, সঙ্গীতাচার্য, সমস্ত ম্যাস্ট্রোস তবলা প্লেয়ার, যাদের তবলা শুনেছি এবং সঙ্গসুখ করেছি, শিখতে কিছুই পারিনি, ওই চেষ্টা করি আমার এই সঙ্গীতাঞ্জলি ঈশ্বরের পাদপদ্মে যতটুকু
তবলা তাদের শুনে ফলো করে রেয়াজ করার চেষ্টা এখনো করে যাই এই বয়সেও। এ তো শেখার শেষ নেই। তো যাই হোক, তো এইভাবেই পথ চলা। আর আমার এই রিটায়ারমেন্ট লাইফ, এইভাবেই আমি সঙ্গীতের সাধনা, এই অঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাই। আজ পাখোয়াজি মৃদঙ্গ পণ্ডিত ভোলা প্রসাদকে স্মরণ করছি। ছোটবেলা থেকে আমার শ্রী রামকৃষ্ণ তারক মঠ পুরুলিয়াতে, তার সান্নিধ্যে আসা, তার কাছে তবলায় হাতে করি, এখনো পর্যন্ত সেটা বাজাবার চেষ্টা করি, যেটা আমার নাতিও এখন শিখছে। তেরে কেটে তাকো 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 তেরে কেটে, তারপর থুনতা ক গ, ঘেগে তেটে ঘেগে নানা, ধাঁধা তেটে ধাঁধা থুন্না, এই সমস্ত এখনো রেয়াজ করার মাধ্যমে নিজের তবলা শেখা এখনো শেষ হয়নি। আর যাদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম পাটনায় থাকাকালীন, বেনারস পাটনার, সেই পণ্ডিত কপিল দেব সিংজি, তার গুরু, তিনিও আসতেন ছোটবেলায় আমাদের পিতৃদেবের সেই বাসস্থানে। পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ জি, पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, पंडित शांता प्रसाद ওরফে গোদাই মহারাজ জি, पंडित किशन महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी জ্যাঠামশাই ছিলেন পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ জি, যাদের সঙ্গ সুখ পেয়েছি। পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ, ফারুখাবাদ ঘরানার তিনি ম্যাস্ট্রো তবলার বিদ্বান তবলাবাদক ছিলেন। তাকে খুবই কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি আমার মেন্টার বলুন, গুরু বলুন, এবং বড় দাদা, স্থানীয় দাদা ভাইয়ের আমার সম্বন্ধ ছিল। এবং আমি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বহু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের পাটনায় প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছি তাদেরই সহযোগিতা পেয়ে। তো তাদের সকলকে আমি স্মরণ করি। আমাদের যারা পূর্বের, যারা আমার বড় দাদারা ছিলেন অর্গানাইজার, কিংবদন্তি সমস্ত বিখ্যাত অর্গানাইজার। তো এইভাবে পথ চলা। তো पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद ওরফে গোদাই মহারাজ জি, पंडित শঙ্কর ঘোষ, पंडित শ্যামল ঘোষ, पंडित কানাই দত্ত, তাদের গুরু पंडित জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, ওস্তাদ কেরামতুল্লাহ খাঁ সাহেব, তার পুত্র আমার খুবই বন্ধু ভাতৃস্থানীয় ছিল ওস্তাদ সাবির খাঁ, এই গত মাসেই সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আর 2 বছর আগে 2024-এ আমরা হারাই বিখ্যাত সারা পৃথিবীর এক অন্যতম তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হোসেন জি। তার পিতৃদেবও, আমি তাকেও ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম এবং তার সঙ্গে অনেক গল্প, তার সঙ্গ সুখ পেয়েছি। উনি আমার প্রোগ্রামে আসতেন, ওস্তাদ আল্লাহ রাখা সাহেব। তো এইভাবে প্রত্যেকটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রতিটি তবলাবাদকদের আমি স্মরণ করি। এবার একটু হিন্দিতে আমার যারা বন্ধুরা বাইরে রয়েছেন। तो इसी तरह आज ये पवित्र पावन अवसर, पावन तिथि, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी शास्त्रीय संगीत के जितने भी हमारे विद्वान शास्त्रीय संगीतज्ञ, चाहे वो गायन हो या इंस्ट्रूमेंटल संगीत से जुड़े हुए हों, और तबला के जितने भी हमारे विद्वान तबला वादक लोग पूर्वज में थे, पूर्व में और अभी भी विश्व में जहाँ जो भी हैं विद्वान, सबों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। और ये शास्त्रीय संगीत ये महासमुद्र है, इसका अंत नहीं। एक जीवन में शास्त्रीय संगीत का तालीम कभी भी संभव नहीं है। जैसे समझिए कि समुंदर से, महासागर से, या गंगा जी कहिए, तो एक लोटा पानी भी लिया जाए तो वो भी कम नहीं, बहुत कम है, क्योंकि ये कभी इसका अंत नहीं है। तो इसी तरह और हिंदुस्तानी मार्ग संगीत जो ये देख रहे हैं तबला, ये दोनों आंखें हैं। तो दायां और बायां जो डग्गा है, बायां और दाहिना, तो ये दोनों आंख है। ये संगीत
का आँख कहा जाता है। तो इसी तरह से मैं सभी गुरुओं को स्मरण करते रहता हूँ और उन्हीं के सारे चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते रहता हूँ। और जितने भी मेरे तबला मार्तंड, पखावज, मृदंग मार्तंड पूर्व में थे, सबों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। और अभी समझिए कि सेवानिवृत्त होने के बाद मैं भारत के, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं 42 वर्ष 42 ईयर्स मैं भारत सरकार की सेवा की, 2 विभागों के माध्यम से। और इसी तरह अब सेवानिवृत्त 2017 के बाद से समझिए अब 9.5 साल हो चला। जनवरी 2027 में मैं 10 साल पूरा करूंगा सेवानिवृत्त हुए। तो इसी तरह से अब समयों का सदुपयोग करते रहता हूँ, चाहे अध्यात्म से हो जुड़े हुए विषय हो, और साहित्य से तो मेरा लगाव बचपन से रहा। बंगला, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य से मैं जुड़ा रहता हूँ और इसी तरह आप सबों की खिदमत में रूबरू होते रहता हूँ। और समय जिस तरह से मिलता है तो मैं अपना तबला के माध्यम से, ये तबला वादन जो है, सबों को मैं गुरुओं को स्मरण करते रहता हूँ, उनके द्वारा बजाए हुए विगत दिन के तबला वादन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपने तबला रियाज के माध्यम से। और इसी तरह अपना जीवन, आनंदमय जीवन और संगीत निवेदन ईश्वर के कमलों में, इस ईश्वर के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें मैं निवेदन करते रहता हूँ। तो जय हो, जय भारत, वंदे मातरम। थोड़ा बहुत तबला बजाने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुओं को स्मरण करते हुए। कोई गलती सलती हो तो वो मेरा गौतम का गलती है, और कहीं अगर सही बच जाए तो वो गुरुओं का आशीर्वाद है, माता सरस्वती की कृपा है, और हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद बिल्कुल है। अब सारा ताल, मात्रा जो भी है सब इसी में निबद्ध है, और
सारे गुरुओं का बजाया हुआ चीज को ही बजाने की कोशिश करते रहता हूँ।
शांता प्रसाद उर्फ बुद्धि महाराज जी को स्मरण कर रहा हूँ। उनके द्वारा बजाए हुए हर तबला बोल बानी बिल्कुल कमल और गुलाब के फूल जैसा खिल उठता था। और ये देखिए बनारस का राव, वो जब भी बजाया करते थे तो कहते थे, देखा 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 दिल्ली का कुतुब मीनार देखा, बोल इतना सुंदर, धारे तादे देटे धारे धारे धातिन नातिन नाड़े तारे तादे देटे धारे धारे धातिन नातिन नाड़। और ये बजाते बजाते नाना नाना तक 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 तिरकिट तिरकिट धिरकिट का प्रयोग किया करते थे।
पंडित कपिल देव सिंह जी को स्मरण करते हुए उनके द्वारा बचपन में एक बोल को एक दो कायदा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, धाधा तेटे धाधा थुन्ना ताता तेटे धाधा दिन्ना सभी घराने में बजाया जाता है। दिल्ली बाज में ये 2 उंगलियों का तेटे, और समझिए कि बनारस हो, पंजाब घराना हो, जो भी दमदार तेटे होता है, अजरारा कहिए, अजरारा दिल्ली फरुखाबाद लोग दोनों तेटे का इस्तेमाल किया करते हैं। और बनारस में ये 3 उंगलियों का तेटे, कभी कभी 4 उंगलियों का भी तेटे लगता है, तो दमदार तेटे होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बोल है। ये एकदम मरते दम तक ये तेटे तिरकिट ये सब रियाज करते रहना चाहिए। धाधा तिरकिट धाधा तुन्ना ताता तिरकिट धाधा तुन्ना धाधा। अभी धाधा तेटे का कितना प्रकार है, 2-3 कुछ बजाया जाए। 2 उंगलियों का तेटे, फिर थोड़ा रिवर्स तेटे। इसमें बायां का एकदम स्पॉन्टिन्यूटी रहता है, जो एकदम बिल्कुल, और बड़ा मीठा आवाज निकलता है।
पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी को स्मरण करता हूँ। उनका एक कायदा बड़ा अच्छा लगता है। धातरिकट धैतिट्टे घेरना धाती घेरना थुना घेरना तातरिकट धैतिट्टे घेरना धाती घेरना धीना घेरना। इसी तरह से पंडित किशन महाराज जी को स्मरण करता हूँ। आहा, महाराज जी इस चीज को खूब बजाया करते थे। अद्धा ताल में ये कायदा बहुत सुंदर लगता था। महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ। पंडित शंकर घोष जी का बिल्कुल उनके द्वारा बजाए हुए हिंदुस्तान में, हमारे देश में मैंने अपने जीवन काल में 3-4 तबला वादकों को बहुत ही लयदार और गणितज्ञ तबला वादक जिसे कहा जाता है, उन सबों को देखा, जिसमें कि पंडित किशन महाराज जी, पंडित शंकर घोष जी, पंडित नानक प्रसाद जी, इस तरह से पंडित श्यामल बोस जी, ये काफ़ी इन लोग लयदार और बहुत ही विद्वान तबला वादकों में से गिने जाते हैं। और इस तरह से समझिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी का कहना क्या है, उन्होंने तो तबले को एक नया रूप विश्व में देकर समझिए 73-74 साल की उम्र में वो अल्लाह ताला के ईश्वर के प्यारा हो गए, लेकिन उनका बजाया हुआ तबला अभी भी सबों के दिलों में विराजमान है और रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उस्ताद जाकिर हुसैन कहिए,
उस्ताद अल्लाह रखा जी कहिए, उस्ताद अहमद जान तिरकवा जी कहिए, उस्ताद पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी कहिए, पंडित शांता प्रसाद उर्फ उदय महाराज जी कहिए, पंडित किशन महाराज जी कहिए, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष कहिए, पंडित श्यामल बोस, पंडित कनाई दत्ता, पंडित शंकर घोष जी, इन लोगों का नाम सदा रहेगा। इसी तरह से सबों को याद करते रहता हूँ। देखिए, धाते टे धाते टे धाधा तेटे धागे तू नागेना सभी लोग बजाया करते हैं। ताते टे धाते टे धाधा तेटे धागे धी नागेना सभी लोग बजाते हैं। लेकिन पंडित शंकर घोष जी ने बड़ा अच्छा इसमें और मेलोडी उन्होंने ला दिया, इतना सुरमय कर दिया इस बोल को, इस कायदा से रेला कहिए, रेला को इतना सुरमय उन्होंने किया, इतना मेलोडी इसमें भर दिया कि धाते टे धाते टे धाते टे धागे तुन्ना किन्ना किन्ना धाते टे धाते टे धागे तुन्ना किन्ना धाते टे धाते टे धागे तुन्ना किन्ना। तो बोल क्या हुआ? टोटल है धाते टे धाधाते टे धागे तुन्ना घेना ना ना नाते टे देटे धाते टे धागे तुन्ना केना ताते टे धाते टे धाधाते टे धागे दिना घेना ना ना नाते टे देटे धाते टे धागे दिना केना। और ये घेना ना ना नाते टे देटे धाते टे धागे तुन्ना केना, ये जुड़ जाने से इतना मेलोडी हो गया। So that's why this धाते टे धाधाते टे धागे तुन्ना, adding घेना ना ना नाते टे धाते टे धागे दिना घेना, it becomes so melodious. ब्यूटीफुल। इस तरह से उनका एक दो कंपोजिशन पंडित शंकर घोष जी का बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, ये भी रेला धाते टे घेरे नगे धाधा घेरे नगे तुम ना घेरे नगे ताते टे घेरे नगे तुम धाधा घेरे नगे दिन ना घेरे नगे।
इस तरह से। और पंडित शंकर घोष जी मरते दम तक वो ऐसे बैठ के अगर गप भी किया करते थे हम सबों के साथ, तो उनका उंगली चलते रहता था। और जवानी में क्या उन्होंने तबला बजाया, और वो कहते थे कि ये धाती धाधा धातुम नाना ताती धाधा धादिम नाना, इसका रियाज सभी तबला वादकों को करना चाहिए। और इसमें जो उंगलियों का एक्सरसाइज कहिए, और बहुत सुंदर इसका निकासी होता है, और यही से लघी बन जाता है। ये धातिन धारा तातिन धारा कहिए, जो भी कहिए, ये लघी तो ये धाती धाता धातिन नाना ताती धाता धातिन धारा। हमारा ग्रैंडसन भी अभी इसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं अब भूल जाता हूँ, जवानी में बजाया करते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत कोशिश करते रहता हूँ, और सारे विद्वान तबला वादकों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा बजाए हुए सारे चीजों को बजाने की कोशिश करते रहता हूँ। और क्या, और इसी के माध्यम से हमारे माँ सरस्वती माता जी के चरणों में मैं निवेदन करते रहता हूँ, गुरु जी के चरणों में मैं निवेदन करते रहता हूँ। और आप सभी हमारे मित्र लोग जो भी है, मैं तो दूर से इतना देख नहीं पा रहा हूँ किनका किनका अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबों को मैं आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आभार, बधाई, प्यार, अभिनंदन मैं हृदय से दे रहा हूँ। आप सब खुश रहिए और संगीत से जुड़े रहिए, और अध्यात्म जीवन से भी जुड़े रहिए। आप देखिए स्वस्थ में, आनंद में, सुख में, शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। और इसी तरह मैं ईश्वर से आप सबों के स्वस्थ में जीवन की मैं कामना करते रहता हूँ। धाती धादा धातुम नाना ताती धादा धादिम नाना धाती धादा धातुम नाना ताती धादा धादिम नाना। भी लघी का तैयारी हम सब कर सकते हैं। आज पंडित शंकर घोष जी का एक बहुत सुंदर चीज वो देखिए, रेला मुझे याद आ गया। धाती का धेटे तो धाती का धेटे तो धाती गेला, ताती का धेटे तो धाती का धेटे तो धाती गेला। ये खुली बुद्धि में, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म में देखिए किस तरह से उन्होंने कंपोज किया इसको। धाती का धेटे तो धाती का धेटे तो धाती गेला, ताती का धेटे तो धाती का धेटे तो धाती गेला। इसके कई प्रकार, थोड़ा सा लय बढ़ाकर
ये भी एक बहुत सुंदर रेला। धने गने नक तक धने गने नक घेने ना घेने थेने गने नक तक धने गने नक घेने ना घेने। ये भी बहुत सुंदर है और उसको फिर मैंने निजी स्टाइल में इसको फिर बजाने की कोशिश मैं करते रहता हूँ। अब जैसे बनारस में सभी लोग बजाया करते हैं पंडित शंकर घोष बजाया करते थे। नादी गति नाना घेना घेना धाती दादा सुनना नाती कति नाना घेना घेना धाती दादा दीना। बन जा सकता है, बनता है।
अंतिम में फिर अब 9:30 बजने चले हैं, तो अंतिम में पुनः मैं पंडित शांता प्रसाद और गुरुदेव महाराज जी को स्मरण करते हुए एक उनके द्वारा बजाया हुआ बांट बहुत खूबसूरती के साथ, और उनके हाथों से क्या कहना है। अब ये भी एक मैं महत्वपूर्ण बातें आप सबों से साझा करना पसंद करूंगा। महान तबला वादकों के मैं उनके मुंह से मैं सुना कि पंडित शांता प्रसाद और गुरुदेव महाराज जी बनारस घराने के ऐसा मार्तंड तबला वादक थे, इतना कठिन परिश्रम, कठिन साधना के, और माता काली माता के वो पुजारी थे, और उनके आशीर्वाद से, उनके गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके गुरुजी थे पंडित बिकू महाराज जी और पंडित बाचा प्रसाद जी उनके पिताजी। तो इस तरह से उन सबों के आशीर्वाद से वो उन्हीं के मुंह से, और गुरुदेव महाराज जी के घर में जाया करता था, पंडित किशन महाराज जी के भी निवास पर मैं जाया करता था। जब भी बनारस मेरा दौरा लगे तो कबीर चौराहा स्थित पंडित किशन महाराज जी और पंडित शांता प्रसाद जी के घर में अवश्य जाया करता था। और समझिए कि बनारस घराने के पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी और उनके सुपुत्र पंडित रामजी मिश्रा जी इतने विद्वान तबला वादक थे, और उन सबों के हाथों से जो भी तबले का बोल निकलता रहा वो कमल का फूल, गुलाब का फूल। मैं पुनः इस बात को दोहराना पसंद करता हूँ। तो बनारस घराने के पंडित लच्छू महाराज जी, पंडित शारदा सहाय जी, पंडित आशुतोष भट्टाचार्य जी, पंडित महादेव मिश्रा जी। पंडित महादेव मिश्रा जी तबला वादक के साथ साथ वो बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे, ठुमरी गायन भी क्या गाया करते थे। इस तरह से महान गायकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। हमारे पिताजी के घर पे और दादाजी के घर पे बनारस गया में भी हम लोग रहा करते थे। तो गया में मैं नहीं रहा, मैं जाया करता था, लेकिन हमारे दादाजी और गोविंद लाल नकफूफा जी, और समझिए ये हारमोनियम के जितने मार्तंड थे, सोहन लाल शर्मा जी, और समझिए कि मंटू बनर्जी जी, उनके जो गुरु थे पंडित मुनेश्वर दयाल जी, गया के आहा क्या हारमोनियम बजाया करते थे। बड़े रामदास मिश्रा जी, उनका सुपुत्र हमारे घर पटना में आया करते थे, पंडित गोवर्धन मिश्रा जी। तो इन सबों को मैं स्मरण करते रहता हूँ, और इन सबों को स्मरण करते हुए वो पुरानी बातें याद आते रहती है। तो इस तरह से पंडित शांता प्रसाद जी का ये बोल, तो अंतिम में मैं इसे बजाकर पूर्ण विराम करूंगा। तो क्या बोल है, धागे थुना के न ताके दिना घेना धाती घेना घेना धाती घेना घेना धाती घेना धाती घेना घेना धाती घेना घेना धाती घेना। और उसमें भी वो तिरकिट दिरकिट का प्रयोग किया करते थे।
अब पूर्ण विराम करना पसंद करूंगा। गुरु मंत्र पुनः मैं गुरु मंत्र और शांति मंत्र देकर, जय ध्वनि देकर आप सबों को शिवरात्रि कर विदा दूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धाश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातितं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय सिया सूधि रामचंद्र जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का गुरु पूर्णिमा जी की जय। जय आज का दिन जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।